Hello dear children. In last video we discussed about the computer and its uses and one main parts of computer CPU. Today we are going to discussing about the monitor, mouse, keyboard and computer other parts. So let's start page number 8. Let's start our today's topic, monitor. It resembles a TV screen. Monitor is also known as the visual display unit. It displays all the inputs and outputs on its screen. It shows the movement of the mouse. You can watch movies, cartoons and pictures using the computer's monitor. These are CRT, cathode ray tube, monitor and LCD, liquid crystal display of flat panel monitor. Monitor. It resembles a TV screen. Monitor is also known as the visual display unit. It displays all the inputs and outputs on its screen. It shows the movement of the mouse. You can watch movies, cartoons and pictures using the computer's monitor. These are CRT, cathode ray tube, monitor and LCD, liquid crystal display on flat panel monitor. तो जो मॉनिटर होता है वो किसके जैसा दिखता है? टीवी स्क्रीन जैसा दिखता है ना, टीवी के जैसा दिखता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि हम इसमें मॉनिटर पे सभी देख सकते हैं, सभी चीजें, इनपुट भी और आउटपुट भी, और उसमें इट शोज द मूवमेंट ऑफ द माउस, और माउस की मूवमेंट भी हम उसमें देख सकते हैं. नाउ वी विल सी द थर्ड मेन पार्ट विच इज माउस. Look at here, computer mouse. We use computer mouse to select and move an object on a computer screen. It is a pointing input and used to move the cursor from one point to another point. We use computer mouse to select and move an object on a computer screen. It is a pointing input and used to move the cursor from one point to another point. Mouse wire connects with the CPU. It has 2 or 3 buttons on it. We use it for selecting any object. When you move the mouse, the pointer also moves in the same direction. It is used to draw pictures also. We use computer mouse to select and move an object on a computer screen. Mouse is a pointing device. आपको पता है ना ये माउस किसके जैसा दिखता है? आपने रियल माउस देखा, उसके जैसा दिखता है ना. तो ये CPU से कनेक्ट रहता है. It has 2 or 3 buttons on it. इसके 2 या 3 बटन्स रहते हैं और ये CPU से कनेक्ट रहता है. When you move the mouse, the pointer also moves in the same direction. हम कर्सर से इसे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वहां पर इसे, उस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं माउस की हेल्प से. वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर. हम इससे पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट इज एन इनपुट डिवाइस. Now we will read different actions of a mouse. A. Single click. When you click mouse button once and release, it is called the single click. A single click is used to select an item on the computer screen. What is the means of single click? When you click mouse button once and release, it is called the single click. A single click is used to select an item on the computer screen. Single click का मतलब क्या होता है? जब हम माउस को एक बार क्लिक करके उसे रिलीज कर देते हैं तो उसे बोलते हैं सिंगल क्लिक. A single click is used to select an item on the computer screen. और इससे हम आइटम सिलेक्ट करते हैं.
सेकेंड है डबल क्लिक. When you press the left button twice quickly and release, it is called the double click. जब हम लेफ्ट बटन को 2 बार जल्दी से क्लिक करके उसे रिलीज कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डबल क्लिक. In the middle there is a scroll button used to scroll the mouse in all the direction. Double click is used to open a document or a window. In the middle there is a scroll button. यहाँ पर एक बीच में क्या रहता है? स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बटन रहता है ना माउस. इट इज यूज टू स्क्रॉल द माउस इन ऑल द डायरेक्शन. और हम इसे माउस को मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. डबल क्लिक इज यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट्स और ए विंडो. तो ये डॉक्यूमेंट्स और विंडो को ओपन करने में हेल्प करता है. इसका यूज करते हैं डबल क्लिक का. सी ड्रैग एंड ड्रॉप. It is used to move an item from one place to another and release at the desired direction and place. Drag and drop means it is used to move an item from one place to another and release at the desired direction and place. It is used to move. हम किसी भी आइटम को वहाँ से लेके दूसरी प्लेस पे उसको ड्रैग कर सकते हैं, है ना. जहाँ जिस भी डायरेक्शन में हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम उसे ले जाके ड्रैग कर सकते हैं, उसे खींच सकते हैं. सी हियर पॉइंट ए. प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन आइकॉन. बी. प्रेस द लेफ्ट बटन को प्रेस किया. होल्ड एंड मूव लेफ्ट माउस बटन. उसको होल्ड किया और लेफ्ट बटन को होल्ड एंड मूव लेफ्ट माउस बटन और फिर उसे यहाँ पे रिलीज किया. रिलीज द बटन एट डिजायर्ड प्लेस. जिस भी डायरेक्शन में हमें उसको लेके जाना है वहां पर उसे रिलीज किया. नाउ फोर मेन पार्ट. कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. वी यूज इट टू टाइप डेटा एंड कमांड्स. इट इज एन important part of the computer. It helps to print letters, feed data, give typed instructions on the monitor screen. A keyboard have alphabets, numbers and special symbols. The keys on the keyboard can broadly be divided into the following groups. Keyboard is an input device. We use it to type data and commands. It is an important part of the कंप्यूटर. यह कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट है. इट हेल्प्स टू प्रिंट. यह हमारी हेल्प करता है लेटर प्रिंट्स करने में, डाटा फीड करने में, गिव टाइप इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन देने में. ऑन मॉनिटर स्क्रीन अ कीबोर्ड हैव अल्फ़ाबेट. इसमें क्या क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स. द कीज ऑन द कीबोर्ड कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स. जो कीबोर्ड की कीज है वो इस तरह से डिवाइड की गई है. अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेशल कीज, फंक्शन की एंड कर्सर कंट्रोल कीज. कीबोर्ड के जो ऊपर जो कीज दी गई है उसमें अल्फ़ाबेट है, नंबर की है, स्पेशल कीज है, फंक्शन की है और कर्सर कंट्रोल की है. कीबोर्ड इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. देयर आर 104 keys on a keyboard. We can type numbers, characters, words with these keys. Besides, it performs many other functions as well. A keyboard has different sets of key for different purposes. कीबोर्ड है ये मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा पार्ट है. देयर आर 104 कीज. इसमें कितनी कीज है? 104 कीज. हम इनसे नंबर्स, कैरेक्टर, वर्ड्स टाइप कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त ये और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है. कीबोर्ड हैज डिफरेंट सेट्स ऑफ कीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. और इसमें डिफरेंट टाइप की कीज है, वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है. 1. Alphabet keys. There are 26 alphabet keys on a keyboard. कितने होते हैं? 26 alphabet. The alphabet A to Z are marked on them. इस पे A to Z मार्क रहते हैं. But these are not arranged in
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन ये एक जैसे नहीं रहते, जैसे ABCD पूरी लिखी रहती वैसे ऑर्डर में नहीं रहते. You can type words, paragraphs, letters with the help of these keys. Both the capital and small letters can be typed with these keys. But these are not arranged in alphabetical order. हम इनसे words, numbers, paragraph, letters टाइप कर सकते हैं. Both the capital और small letter भी हम इनमें टाइप कर सकते हैं. Now second है number keys. On a keyboard, some keys have 0 to 9 written on them. These keys are known as the number keys. These are used to type numbers. There are two sets of number keys on the keyboard. One set of number keys is located above the top row of the alphabet key. On a keyboard, some keys have 0 to 9. जो रहती कीज उसमें 0 to 9 नंबर रहते हैं. On them, these keys are known as the number key. इसे हम क्या कहते हैं? नंबर की. These are used to type numbers. और ये किस लिए यूज होती है? नंबर टाइप करने के लिए. इसके 2 सेट्स रहते हैं, नंबर की और one set of number keys is located above the top row. सबसे जो ऊपर रहती है ना टॉप रो पे, वो नंबर की of the alphabet keys. जो अल्फाबेट की है उसके सबसे ऊपर टॉप पे जो रहती है ना, ये रहती है नंबर की. Other set of number keys is also located at the right hand side of the keyboard. Here, look at here. ये यहाँ पर ये numlock key and ये numeric keypad. The second set of number keys known as numeric keypad. To use the numeric keypad, numlock key is pressed. After pressing numlock key, numlock indicator light glows green. It indicates that the numlock is open. Once the numlock is open, you can type any number. The number key also have some special characters printed on them. They are used when required. Other set is also located at the right hand side of the keyboard. अब यहाँ भी है नंबर लॉक की, न्यूमरिक कीपैड. इसे क्या बोलते हैं? न्यूमरिक कीपैड. और यहाँ पर होती है नम लॉक की. जब हम नम लॉक की को प्रेस करते हैं तो ये इंडिकेट करती है ग्रीन लाइट से ओपन, जब ये ओपन होती है तब. वंस द नम लॉक की इज ओपन, यू कैन टाइप एनी नंबर. और हम इसे कोई से भी नंबर टाइप कर सकते हैं. दे आर यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड. और ये स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करती है उस पर. जब हमें ज़रूरत होती है तब हम इसे प्रेस करते हैं. Third, special key. These keys are used to do some special functions. A. Space bar. Special key means कौन सी है? A. Space bar key. It is the longest key on the keyboard. This key is used to provide space between letters or number. जो स्पेस बार की होती है सबसे लॉन्गेस्ट की होती है. दिस की इज यूज टू प्रोवाइड स्पेस. और यह स्पेस देने के काम आती है. ये स्पेस देती है नंबर, लेटर्स और नंबर्स को स्पेस देने का काम करती है. अब यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है चल चौधरी फर्स्ट टाइप. अब ये टाइप करेंगे और फिर स्पेस देने के लिए यहाँ जैसे स्पेस दे रखा ना, तो ये नाम लिख के आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे, फिर आप सरनेम प्रेस करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ इन दोनों के बीच में स्पेस हो जाएगा. B. Caps lock key. This key is used to type in the uppercase. When you press caps lock, you see caps lock indicator light glows green. To turn off the indicator, you should once again press the caps lock key. Caps lock key देखिए यहाँ पर ये है caps lock key. This is used to type in the uppercase. When you press caps lock key, you see caps lock indicator light glows green. To turn off the indicator, you should once again press the caps lock key. कैप्स लॉक की का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कैपिटल लेटर्स लिखना रहता है तब हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं.
आप इसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है स्नेहा और यहाँ कैपिटल लेटर में। फिर है बैक स्पेस की। वी यूज बैक स्पेस की टू इरेज एनी कैरेक्टर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। Backspace. We use backspace key to erase any character return to the left of the cursor. Backspace से हम किसी भी कैरेक्टर को इरेज कर सकते हैं। We use backspace key to erase any character return to the left of the cursor. तो लेफ्ट साइड से हम उसे इरेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है, हाउस, और अगर हमें इसमें गलती से एम या ओ लिखा गया, टाइप लेटर एम आफ्टर ओ, तो हम इसे पीछे से इरेज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बैक स्पेस की। एंटर कीज। व्हेन वी नीड टू ब्रिंग द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन वी यूज एंटर की। अ कीबोर्ड हैज टू एंटर कीज। एंटर की। व्हेन वी नीड टू ब्रिंग द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन, जब हमें कर्सर को नीचे करना, नेक्स्ट लाइन पे करना है, वी यूज एंटर की, तो हम एंटर की को प्रेस करेंगे। अ कीबोर्ड है टू एंटर की। यहाँ पर कीबोर्ड में टू एंटर की रहती है, एक ये और एक यहाँ पर। जैसे हमें किसी लाइन से फिर जब नीचे जाना है तो हम एंटर की का यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन में जाना है, वी यूज एंटर की। ई शिफ्ट की। देयर आर मेनी कीज ऑन द कीबोर्ड दैट हैव टू कैरेक्टर्स। द शिफ्ट की कैन बी यूज्ड to type the upper characters of this keys. ये होती है शिफ्ट की। There are many keys on the keyboard. कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती है, उसमें से एक क्या है, the shift keys. Shift keys can be used to type the upper character of these keys. हमने देखा कि कीबोर्ड में बहुत सारी कीज रहती है, उसमें that have two characters, और उन कीज में two characters रहते हैं। अगर हमें अपर कैरेक्टर को इसमें प्रिंट करना है तो द शिफ्ट की कैन बी यूज टू टाइप द अपर कैरेक्टर। अगर हमें अपर कैरेक्टर को टाइप करना है तो हमें शिफ्ट की के साथ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 90, ये लिखा 9 एंड 0। अगर हमको इसको परसेंटेज में लिखना है तो हमें शिफ्ट की के साथ इसे प्रेस करना पड़ेगा, तो ये इस तरह से परसेंटेज में अपीयर होगा ऑन द स्क्रीन। When the caps lock key is off, the shift key can be used to type the capital letters. अगर कैप्स लॉक की को हमने ऑफ कर दिया तो वो कैपिटल लेटर में लिखने, हम जो भी लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। एग्जाम्पल, प्रेस शिफ्ट की प्लस अल्फ़ाबेट की। शिफ्ट की और अल्फ़ाबेट की को साथ में जब प्रेस करेंगे, इफ़ द कैप्स लॉक की इज़ ऑन, अगर कैप्स लॉक की ऑन है तो प्रेसिंग द शिफ्ट की विद द अल्फ़ाबेट की विल डिस्प्ले स्मॉल लेटर, तो ये स्मॉल लेटर को डिस्प्ले करेगी। अब है टैब की। टैब की इज यूज टू एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट स्टेप स्टॉप। टैब की एडवांस में, जैसे हमें इस पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर जाना है तो एडवांस में वहाँ पर कर्सर को ले जाती है। टैब की इज यूज टू एडवांस द कर्सर टू द नेक्स्ट स्टेप स्टॉप। फिर है सिम्बॉल्स। दीज आर प्रिंटेड ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द नंबर्स की। टू यूज दिस सिम्बॉल्स प्रेस शिफ्ट प्लस नंबर की। सिम्बॉल्स, दीज आर द प्रिंटेड ऑन द अपर पोर्शन। सिम्बॉल्स जो रहते हैं इसके ऊपर जो लिखे रहते हैं ना, अपर पोर्शन पे ये सिम्बॉल्स रहते हैं। टू यूज दिस सिम्बॉल्स, अगर हमें इन सिम्बॉल्स को यूज करना है तो शिफ्ट की के साथ हमें नंबर की को प्रेस करना पड़ेगा, तो ये अच्छे से इन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब है फंक्शन की। दीज आर फाउंड ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। दीज आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द रो ऑफ द कीबोर्ड। देयर आर 12 इन नंबर फ्रॉम F1 to F12. Each function key has specific function which varies from various programs. अब यहाँ देखते हैं हम कि ये दीज आर फाउंड ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड में टॉप रो में रहती है। देयर आर 12 नंबर। ये 12 नंबर में F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे करके ये F12 तक रहती है। स्पेसिफिक फंक्शन रहते हैं इसके, विच वेरियस फ्रॉम वेरियस प्रोग्राम्स। अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए
अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। अब है वी cursor control keys. These keys have to move the cursor in desired direction. There are 4. क्या है कर्सर कंट्रोल की? These keys have to move the cursor in desired direction. यह कीज डिजायर डायरेक्शन में कर्सर को मूव करती है। There are 4 cursor control keys. There are 4 cursor control keys. Left, right, up and down keys. Cursor control keys are also known as the direction keys और arrow keys. इसे डायरेक्शन की और एरो कीज भी कहते हैं, जैसे अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ओके, आपको ये चैप्टर समझ में आया? इसे आप अच्छे से रीड करिएगा।